Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher, Miss Sabah Salim here from Bank Road campus. I am the permanent faculty of University of Education. I will teach you your subject Art of Miniature Painting, and its course code is Fine 2121, and it's your first lecture, and the topic is Introduction to Miniature. The contents are introduction and definition of miniature, types of miniature painting, medium used in miniature, process of make a miniature painting. Let's start. First of all, we should know the word miniature. The word miniature derives from the Latin verb miniere, to color. A red lead indicates a small illustration used to decorate an ancient or medieval illuminated manuscript. The generally small scale of such medieval pictures has led to confusion with minuteness and to its application to small paintings, especially portrait miniatures, which did, however, grow from the same tradition and at least initially used similar techniques. Apart from the Western and Byzantine traditions, there is another group of Asian traditions which is generally more illustrative in nature and from origins in manuscripts, book, decoration also developed into single sheet small paintings to be kept in albums which are called muraka miniatures as the Western equivalents in watercolor and other mediums are not. These include Persian and Mughal miniatures. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम वर्ड मिनिएचर की बात करेंगे. मिनी मीन्स स्मॉल. स्मॉल doesn't mean the size. I'm talking about small details. The very tiny and minute details are called miniature. You can see so many miniatures which are in small size and which are in very large size. When you see in history, artists use small size and large size as well. If you go to the museum, you can see both sizes in miniature. पहले ज़माने में लोगों को एजुकेट करने के लिए मिनिएचर पेंटिंग्स के थ्रू लोगों को मैसेज दिया जाता था, जो बुक फॉर्म में मिनिएचर्स बनाई जाती थी जिनको हम मुरक्का कहते हैं. मुरक्का एक बुक फॉर्म की शेप में पेंटिंग्स होती थी जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स पर पेंटिंग्स बनाई जाती थी along with the borders, decorative borders. मिनिएचर्स जो है वो वेस्टर्न में भी यूज़ की जाती है, बट in your this course we will talk specially about Asian traditions miniatures. जब हम एशियन पेंटिंग्स की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले पर्शियन एंड मुगल मिनिएचर्स आएंगी. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now I will tell you about the types of miniature. There are basically three types of miniatures: Syakalam, Neemrang and Gadrang. The first painting you can see a single figure. A black and white painting is called Syakalam. जैसे कि वर्ड स्याह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसको हम ब्लैक कहते हैं, उसी से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि this painting is all about black and white
and it's done in transparent color. स्याह कलम में हम ट्रांसपेरेंट कलर यूज करते हैं. वाटर कलर जो ब्लैक एंड वाइट में होती है, हम वाटर के साथ ब्लैक की टोन्स ऐड करके स्याह कलम को पेंट करते हैं. As you can see the border and inside the painting everything is in black color, black tone. This area is painted as पर्दा, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगी डिटेल में. Okay, next, नीम रंग. As you can see in this picture, a brown tone monochrome painting is called नीम रंग. इस पूरी पेंटिंग में आपको पहले ब्लैक था, अब आपको ब्राउन की टोन में सब पेंटिंग नजर आएगी. नीम रंग में हम लोग ब्राउन की टोन्स यूज कर सकते हैं, हम लोग कॉफी कलर यूज कर सकते हैं, एंड जो नीम के पत्ते हैं हम उससे भी वॉश देकर ग्रीन की टोन्स में पेंटिंग बना सकते हैं. नीम रंग जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उसके किसी एक एरिया को कलर्ड बनाते हैं. इट्स बेसिकली अ स्टेप बाय स्टेप learning of the beginners who wants to study, who wants to learn miniature. बिगनर्स के लिए सबसे पहले हम स्याह कलम से उनको स्टडी करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं. देन सेकंड पेंटिंग इज नीम रंग एंड द थर्ड पेंटिंग इज गदरंग. गदरंग इज टोटली अ कलर्ड पेंटिंग जिसमें हम ओपेक कलर्स यूज करते हैं, सफ़ेदा ऐड करते हैं हम उसमें, जिससे कलर ओपेक हो जाता है. ओपेक, अगर आप पिछली दो पेंटिंग्स देखें, यू कैन सी द सरफेस विच इज़ बसली. आप इसमें इजीली सरफेस देख सकते हैं, बट इन गदरंग आपको सरफेस बैकग्राउंड में नज़र नहीं आएगी. कलर्स ओपेक हैं. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Medium used in miniature. Raw material canvas, cloth or handmade paper to paint on, watercolor, gold color powder, gold leaf called vark, brushes round and flat with sizes ranging from 0 to 12, squirrel hair brushes, starch, plastic emulsion called Duroplast, gold powder. As you can see in these three pictures, फर्स्ट पिक्चर में आपको वाटर कलर्स नज़र आ रहे हैं, सेकंड में आपको पेंट ब्रशेस नज़र आ रहे हैं, एंड द थर्ड इज़ गोल्ड कलर पाउडर. मिनिएचर बेसिकली मोस्टली वाटर कलर ही में बनाई जाती है. पहले टाइम में कलर्स को खुद आर्टिस्ट बनाते थे, अब इजीली अवेलेबल है मार्केट में ट्यूब्स के थ्रू, लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाएंगे आपको. वाटर कलर्स और मिनिएचर के ब्रशेस दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर मीडियम. वाटर कलर्स के ब्रशेस आगे से राउंड होंगे और उनके साइजेस 0 to 12 हैं. इसमें हम स्क्विरल हेयर ब्रश यूज़ करते हैं विच इज़ अ टोटली हैंडमेड ब्रश. इसमें हम स्क्विरल की टेल से उसके हेयर लेते हैं एंड देन उनको कंबाइन करके हम लोग ब्रश बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड कलम. मिनिएचर पेंटिंग में हम गोल्ड को भी यूज़ कर सकते हैं और
गोल्ड लीफ को भी यूज़ कर सकते हैं और सिल्वर लीफ को भी। मोस्टली आर्टिस्ट यूज़ गोल्ड लीफ। इट्स द ओरिजिनल गोल्ड पाउडर और गोल्ड लीफ, easily available in the market, or you can buy it from a gold shop. नेक्स्ट आप इमेज देख रहे होंगे जिसमें आपको एक शेल नज़र आ रहा है और एक आयरन नीडल नज़र आ रही है। बेसिकली ये आयरन नीडल ड्रिलिंग के यूज़ होती है। जो पेंटिंग्स वुडन पे बनाई जाती हैं उसके लिए ये टूल इस्तेमाल किया जाता है। और बर्निशर बेसिकली सी शेल है। जब वसली तैयार हो जाती है तो पेंट उस पे ड्राइंग करने से पहले हम पेंटिंग को बर्निश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि हाउ टू मेक वसली, हाउ टू वर्क ऑन इट step by step. As you can see the picture of shell, अगर आपके पास easily shell available ना हो, you can use a round spoon। ऐसी चीज़ जो टोटली राउंड हो उसको आप इजीली वसली के ऊपर बर्निश कर सकते हैं। उर्दू में रगड़ना कहेंगे कि आप उसको रगड़ेंगे ताकि जो शीट है वो स्मूथ हो जाए, उस पे कलर अप्लाई इजीली हो जाए। जो ज़र्रे होते हैं, जो ड्रेन्स होते हैं शीट के, जो पेपर के, वो बर्निशर से, ये सी शेल से इजीली वो स्मूथ हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, जिससे पेंटिंग जो है वो स्मूथली पेंट हो सकती है। Process of make a miniature. As you can see in the images, एक्चुअली में टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको जस्ट इमेजेस के थ्रू बता रही हूँ कि आर्टिस्ट देखें स्केचिंग कर रहे हैं। इसमें वो कैनवस पर स्केच कर रही है। हम लोग कैनवस पर भी मिनिएचर बना सकते हैं। नेक्स्ट पेंटिंग स्केच रेडी फॉर कलरिंग। जैसे कि उन्होंने पहले पेंसिल से स्केच किया, उसकी प्रोपोर्शंस, उसकी ड्राइंग को डिटेल में बनाकर सेकंड पिक्चर में आप देखें कि स्केच बिल्कुल रेडी है। कलर इसके ऊपर अब हम कलर अप्लाई करेंगे। इसी तरह से आप ये इमेज देखें, मिनिएचर में भी इसी तरह से आप फर्स्ट पेंटिंग देखें, दिस वन, जिसमें आर्टिस्ट जो है वो वसली पर काम कर रहा है। अभी उसने जस्ट एक बेस कलर्स लगाए हैं पूरी वसली पे। एज यू कैन सी इन द सेकंड पिक्चर, दीज आर ऑल बेस कलर्स। जो कलर जहाँ जहाँ लगाना है आर्टिस्ट ने उसको लगा दिया है। यू कैन सी इन द थर्ड पिक्चर द आर्टिस्ट इज मेकिंग डिटेल्स। एक एक लीफ की वो एक एक डिटेल निकाल रहा है थ्रू कलम। अगेन इन दिस पेंटिंग, पहले आपने यहाँ देखा कि जस्ट कलर्स लगे थे, अब आप इसमें देखेंगे कि शेडिंग भी थोड़ी सी हुई हुई है, बैकग्राउंड पे डिटेल्स भी हैं। एज यू कैन सी इन द फ्रंट, ये जो फेंस बनी हुई है ये भी डिटेल में है। जस्ट फिगर के फेसेस और कपड़ों की डिटेल्स नहीं है, बट बैकग्राउंड इज ऑलमोस्ट डन। जी, इस पिक्चर में भी देखें वही वाली पेंटिंग है। आर्टिस्ट जो है, अब इसमें आप साइज देखें उसका कितना बड़ा है। देखने में पिछली स्लाइड में हमें पेंटिंग बहुत स्मॉल साइज में लग रही थी, बट इसमें आप जूम करके देखें तो पेंटिंग का काफ़ी बड़ा साइज है। अब आप देखें कि आर्टिस्ट जो है वो उसकी डिटेल्स निकाल रहे हैं, फीचर्स की, उसके फेस की। पहले उन्होंने ड्राइंग की थी, एज यू कैन सी द अदर इमेज, उसकी ड्राइंग ऑलरेडी हुई हुई है। अब उन्होंने, आर्टिस्ट ने उसकी वो डिटेल्स निकाल रहे हैं। आर्टिस्ट पेंटिंग द फेस।
जी, अब पेंट करके यू कैन सी कि वो उनके गोल्ड लीफ लगा रहे हैं। एज यू कैन सी इन द अदर पिक्चर, जहाँ जहाँ गोल्ड लीफ की जरूरत है आर्टिस्ट जो है वहाँ पे गोल्ड लीफ कर लगा रहे हैं। आजकल की मिनिएचर पेंटिंग्स जो कंटेम्प्रेरी कहलाती हैं उसमें इतनी मिनिएचर पेंटिंग्स को मिनिएचर पेंटिंग्स में गोल्ड लीफ नहीं यूज किया जाता जितना अगर आप हिस्ट्री की पेंटिंग्स देखें, इंडियन पेंटिंग्स देखें, they prefer and like to add gold paint in their paintings that give shine and attraction to the painting.